इज इट ओके? यस सर। ओके ठीक है। चलिए इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म देखा था, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसके अलावा 2010 आईआईटी जेम का एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म का देखेंगे, उसके बाद में सुपर कंडक्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्या? मैं दोनों लैंग्वेज में उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगर जिसे भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है तो मैं बाइलिंगुअल जो है उसको यूज करूंगा, ठीक है। सो I'm going to start first question of magnetism. As already seen in last lecture, magnetism, we already seen the some questions of magnetism. Here is the next question is that the following are the plots of the temperature dependence of magnetic susceptibility for a three different samples. ओके मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करता हूँ। द फॉलोइंग आर द प्लॉट ऑफ यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तीन सैंपल के लिए गए हैं, ठीक है। तीन सैंपल के हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ खींचा है, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज फर्स्ट इज यू कैन सी एंड अनदर वन इज सेकेंड and third one is this. Okay, so these are three graphs is given in the questions. Okay, now we can see the question. What is the option and questions? The plot ABC corresponding to. Okay, यहाँ पूछा गया है कि ए बी सी ये जो तीनों प्लॉट है ये किसके करस्पॉन्ड है, ठीक। द ऑप्शंस यू कैन सी एंड यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। ओके, द प्लॉट एबीसी corresponding to ferromagnet, paramagnet and diamagnetic respectively, paramagnet, diamagnetic and ferromagnetic respectively, ferromagnet, diamagnetic and paramagnet respectively, diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic respectively. This is the D options and these are the four options. Okay, so we can see another time. This is the first plot. Okay, another is second plot and third plot, which is known as a for which particular material it corresponds, that we know, we want to know. Okay, okay, if you have if you know any answers you can write on the chat box. Another you can see here. Okay, so right now I'm explaining this questions answer. Okay, so now we can see first options, first graph. Okay, this is chi versus t graph. Okay, and this is simply when chi is when temperature increases, this chi is going to be decreases. Okay, it is corresponding to 1 by t graph. Okay, so we can see this is chi equal to c by t. You know, this is corresponding to which one? Dia, para, ferra, ferro. This is according to paramagnetism. Okay, chi equal to c by t. It is known for a paramagnetism. Okay, now we can see the B graph, chi versus t graph, in which this susceptibility is constant with the temperature. Okay, for which material it shows chi versus t is constant? Do you know anybody? Do you know? Diamagnet. This is for a diamagnetism, because diamagnetic material, for a diamagnetic material, the susceptibility does not depend on the temperature. Okay, so for a diamagnetic material, the susceptibility is not depend on the temperature. So this is for the diamagnetism. Another one is C, chi versus T, in which we can see this is the transition. Okay, whereby okay after all that it reducing by the chi equal to C upon T minus Tc. Okay, so this is particularly things for the ferromagnetism. Okay, it is a transition temperature Tc, this point. Okay, so this point known for the transition temperature, and above that this is known as a paramagnet, and below that it is the ferromagnetism sustained in the sample. Okay, so these is the three options. Okay, and these corresponding to paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism. So this is the right answer of this question. Okay, do anybody have a problem? If not, then I am going to next question. Just wait. I want to remove this tab. Actually, it okay, this one. Yes. So now this is the first question.
I think everybody knows this answer. Okay, I am going to the second question. Okay, now this is the magnetism complete. Okay, this particularly 7 to 8 questions came past 7 to 8 years in NET or GATE. Okay, whatever the questions came in the exams we already covered. Okay, right now we are going to the next question. इसमें हिंदी में एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है किसी को. आई थिंक ये यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा होगा. यस सर, यस. ओके, सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुपर कंडक्टिंग हम स्टार्ट किया हमने. ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज्ड इन द सुपर कंडक्टर्स ये हमने मतलब मेरे पूरा दिन भर हो चुका है इसमें. मेरे दिन भर जो है सभी आपके जितने भी फॉर्मूलेस थे इस सुपर कंडक्टर्स के वो सभी मैंने इसमें राइट अप कर दिए हैं. ठीक है, अब आपके पास जो है वो अगर आपको कहीं कंपटीशन एग्जाम या कहीं पे भी देखना है तो बहुत सिंपली आप इसे देख लेंगे. ठीक है, उसके साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर problem solving classes means when we are sitting for the problem solve, then you should go to the formula use. Okay, then you will see how much you know and accordingly that you can solve your questions. Okay, so now you can see this is the formulas. May I want to repeat these formulas, or may we can skip this and we are going to the problems part? That I am asking to all students, what should we can do? Okay, because we already covered all the superparamagnetism superconductors theory in the UGPG lecture series. Okay, you can write on the chat box. If I want to repeat, then I can repeat. Either we can go to the problems. सर आप इस ये पीडीएफ को फुल स्क्रीन कर दीजिए ना. फुल स्क्रीन ही है ये फुल स्क्रीन नहीं सर, वो कंट्रोल एल दबा के होता है ना. कंट्रोल एक्स एल. कंट्रोल एल. यस. इसको फुल स्क्रीन एक मिनट में देखता हूँ. हाँ यहाँ शायद ये इस तरह से. नहीं सर, व्यू में जाके यहाँ तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा. सर व्यू में जाके रीड मोड पर जाओ सर, नहीं तो चेंज होता है शायद, क्योंकि व्यू में, लैपटॉप में अच्छा. ऐसे दिखता है. व्यू हाँ, में व्यू में हाँ थोड़ा यहाँ पर एनलार्ज होता कौन सा वाला ऑप्शन है? रीड मोड है, फुल स्क्रीन मोड. है. रीड मोड बोले तो थोड़ा बहुत ज्यादा होता है सर. ओके, व्यू में अभी जूम करे तो जूम में ऑप्शन यहाँ है. एनी ऑप्शंस इज देयर? शायद No. इस ऐप में नहीं आता होंगे. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. वी आर गोइंग टू शो हाइड. रीड मोड है यहाँ पर. ये रीड मोड यही है. ओके, so we can see these are the formula sheet. Okay, so यहाँ आपको फॉर्मूला शीट भी है. आप यहाँ फॉर्मूला शीट से आप आसानी से सभी देख सकते हैं. ये सभी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हो. देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. देखिए सुपर कंडक्टर के बारे में इसमें बताया गया है. व्हाट इज द सुपर कंडक्टर? एवरीबडी नो अबाउट द सुपर कंडक्टर. दे शोज मैक्सिमम conductivity below a particular temperature. It is known as the critical temperature. Okay, and it is shows the perfectly diamagnetic behavior by using this Meissner effect. And we can see using the Ohm's law E and V0 for a superconductors. And if I am comparing with the normal conductor and superconductor, this the behavior of superconductor is same. It seems that it is at a particular temperature the conductivity is resistivity goes down to 0 and conductivity is maximum for infinity. And if I am going to see the normal conductor, this is the normal conductor. Okay, I think may I go to for problem class or problem work, or may I explain this thing, because we already seen in the next classes. Okay, okay, so I'm not repeating. Okay, you can see this on the, I will give in the PDF form to you in YouTube channel, so you can see here these all formulas. Okay, now I am coming back to the problem classes. Okay,
Okay, just see. So the first question is that the thermal conductivity of a given material reduces when it undergoes a transition from its normal state to superconducting state. The reason is the Cooper pair. देखिए क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूँ. The thermal conductivity of a given material reduce when it undergoes transition from normal state to superconducting state. तो यहाँ पूछा गया कि जब थर्मल कंडक्टिविटी आप बताइए, जब नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिविटी पे जाने पर थर्मल कंडक्टिविटी जो है किसी मटेरियल की वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, और उसका रीजन बताइए आप, ये पूछा गया है. ठीक है, द कूपर पेयर कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी टू द लेटिस, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, अपॉन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर द लेटिस बिकम लेस इफिशियंट इन हीट ट्रांसफर, the second option. And third is, sorry, the electron in the normal state lose their ability to transfer heat because of their coupling to the Cooper pair. And fourth is the heat capacity increase on the transition to the superconducting state, leading to the reduction in thermal conductivity. These are the four options. Okay, and सभी को समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आते हैं. उसका रीजन आपको बताना है. ठीक है, पहला ऑप्शन से कि कूपर पेयर जो है वो लेटिस को अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है. ठीक है, ये पहला ऑप्शन से. सेकेंड ऑप्शन, अपोज द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर द लेटिस बिकम लेस इफिशिएंट इन हीट ट्रांसफर, द इलेक्ट्रॉन इन द नॉर्मल स्टेट लॉस देयर ability to transfer heat because of their coupling to the Cooper pair. And fourth is heat capacity increase on the transition to the superconducting state, leading to a reduction in thermal conductivity. देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्यों लॉस होती है, इसका रीजन जो है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन है. ठीक है, अब ये कैसे, तो हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखिए द हीट कैपेसिटी इंक्रीज, ओके, ऑन ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, लीडिंग टू ए रिडक्शन इन थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये आपका ये कि जब अगर हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं नॉर्मल स्टेट से, तो वहां क्या होता है, हीट कैपेसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस होती है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट. ओके, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करें तो ये एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट है. ओके, while the specific heat is the ability to hold or regulate a particular amount of heat. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. पहले तो हम दोनों को समझना होगा, इन दोनों चीजों को समझना होगा, इसी के बाद में हम जो है इसका आंसर दे पाएंगे. तो सबसे पहली चीज तो ये, फॉर ए नॉर्मल कंडक्टर, यस, फॉर ए नॉर्मल कंडक्टर, और नॉर्मल कंडक्टर की हम बात करें तो वो क्या है, एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. और गुड कंडक्टर्स के साथ में क्या है, गुड रेडिएटर्स भी होते हैं. ठीक है, तो अगर गुड रेडिएटर्स होंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपकी हीट है, ठीक है, उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, तो ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट क्या होता है इसमें कि ये ज्यादा समय तक जो है हीट को होल्ड नहीं कर सकते. ओके, सो नॉर्मल कंडीशन की हम नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करें तो उस कंडीशन में इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखी है कि इज द एबिलिटी टू होल्ड द हीट, अमाउंट ऑफ हीट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट. तो अगर गुड रेडिएटर होंगे तो इसकी वजह से क्या होंगे, ये ज्यादा समय तक जो है हीट को स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि होल्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और उसी कंडीशन में हम बात करें कि सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर गुड कंडक्टर्स तो होते ही है, लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो किस पर, लो टेम्परेचर पर, आपको मैक्सिमम सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर पर ही दिखाई देता है. ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब बिलो द रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स तो है लेकिन गुड रेडिएटर्स नहीं है. ठीक है, तो वहां इसकी वजह से ये अपनी होल्ड स्पेसिफिक हीट को होल्ड कर सकते हैं, मतलब एक तरह से स्पेसिफिक हीट जो है उसकी इंक्रीज होगी उस कंडीशन में. ठीक है, बट नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, रिड्यूस होती है. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होती है, सुपर कंडक्ट जो स्पेसिफिक हीट है वो इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट में. ठीक है, और सुपर कंडक्टिविटी की सॉरी हीट कैपेसिटी की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखी है. 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है
वो क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में केवल ये आ जाता है, हम मास जब ले लेते हैं तो हीट कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है इनके बीच में। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये सब जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ये स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना भी है, किसी हीट इंक्रीज मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कंपेरेटिवली। ठीक है, तो उसी कंडीशन में क्या होंगे कि स्पेसिफिक हीट भी आपको ज्यादा होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये क्या है, इसी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है वो रिड्यूस होती है जब हम नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू द, ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट की हम बात करें सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल मेटल के लिए है। ठीक है, ये नॉर्मल मेटल के लिए अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनके लिए सीबी जो है वो टी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, जस्ट स्ट्रेट में। बट इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर विद द superconductor, then what happening in this particular graph, we can see this is the specific heat which is increasing, okay, and it is much more. If I am going to below this particular TC, then we can see the specific heat is more for superconductor and it is just lower for a normal metal. Okay, so this is the condition where specific heat is more for a सुपरकंडक्टिंग स्टेट। और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक अगर हम नॉर्मल मेटल या इसकी बात करें सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक, तो दिस इज द आंसर। आई थिंक वी शुड मूव फॉर ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so I am going to see another question. I think it is okay, सभी को समझ में आया है नहीं? Yes, sir. Okay, चलिए, we will move to the next question. Okay, the order of magnitude of energy gap of typical superconductor is 1 mega electron volt, 1 kilo electron volt, 1 electron volt, and 1 milli electron volt. Okay, do anybody know about this answer? किसी को पता है क्या होती है सुपरकंडक्टर के लिए जो टिपिकल बैंड गैप एनर्जी है, सॉरी बैंड गैप एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी गैप, यहाँ हम बैंड गैप एनर्जी नहीं कहेंगे इसे। ओके, सो दिस आंसर इज 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, आप सभी को ये पता है कि सुपर कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है और जो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है वो क्या सेम होता है क्या? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स that particular energy gap in superconductor, if I am comparing with the semiconductor, is that same energy gap which is in the superconductor, that is difference between conduction band and valence band. Okay, similarly here it is also the same, that I am asking this question to all. Okay, if anybody know, then you can write on the chat box. So many people know that कि सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है दिस इज सिमिलर। ओके, मींस सिमिलर मींस क्या है कि 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द बैंड गैप एनर्जी, दिस एनर्जी गैप इन सुपर कंडक्टर, एंड सिमिलरली we know that in semiconductor this is the energy gap is around the 1 electron volt. Okay, but the thing is that in semiconductor the difference between energy gap, it means it is between the valence band and conduction band, but here it is not a valence band and conduction band. Okay, so what is the difference between semiconductor and superconductor and about the band gap energy or energy gap, that we will see in this particular 4 points. Okay, that is a very important point because lots of people don't know about what is the energy gap of superconductor, or if I am comparing with the metal super semiconductor and as well as insulator. Okay, so this is the quite different. Okay, why? Because we can see in the semiconductor the energy gap usually called as a band gap occur due to इंट्रैक्शन ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन विद द पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ आयन कोर। देखिए, अगर सेमीकंडक्टर में हम बात करें तो ये जो बैंड गैप आपका मिलता है ये किस वजह से मिलता है
बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किससे आपका आयन कोर से जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और उससे जो आपका जो पोटेंशियल बैलेंस से जो इंटरेक्शन होता है आयन कोर के, उससे जो है बैंड गैप आपका जनरेट होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपके पास कुछ एनर्जी लेवल्स है और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके कलेक्टिवली बिहेव करेंगे एंड दे विल इंटरेक्ट विद द potential ion core, okay, potential of ion core, then the band gap will be formed, okay. But here this is not a same theory as we see in the semiconductor. Same इसमें क्या होता है सुपरकंडक्टर, it occur mainly due to electron interaction with the opposite spin, okay, not due to the interaction between electron and periodic lattice, okay. Very important point you can see, okay. So okay, so here we can see यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ में होता है, ठीक है, इनका इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, न कि इलेक्ट्रॉन का आयन कोर के साथ में इंटरेक्शन होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सुपरकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड, वी आर गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, energy gap in semiconductor. Energy gap is represented by the K point, okay. Basically the relation of energy and energy is equal to h square k square by 2m, okay. So that particularly in the semiconductor, if you see, the energy is represented by the k point is k space, okay. But here this is not defined by band gap, okay. It is not a band gap, okay. Energy gap is not a band gap, not represented by the k space, okay. Another point, third point is that band gap different between कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बेसिकली वहां पे जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप डिफरेंस होता है, वो किसका होता है? अच्छा, पीडीएफ का व्यू चेंज करना, कुछ बोल रहे हैं कि पीडीएफ का व्यू चेंज किया जाए, ओके। वही मुझे लगता है ज्यादा बेटर था जो पहले हम देख रहे थे, रीड मोड नहीं, रीड मोड था, एक मिनट, फुल स्क्रीन मोड था शायद, यही ज्यादा बेटर है मुझे लगता है, ओके। थर्ड पॉइंट इज दैट, देखिए, आई थिंक राइट नाउ इट इज ओके, ओके। तो बैंड गैप डिफरेंस अगर हमने देखा है, तो बैंड गैप डिफरेंस वहां क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जैसे बैंड गैप डिफरेंस है, तो ये आपका वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका सेमीकंडक्टर में कैलकुलेट किया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, कूपर पेयर आर कंसिडर्ड एज अ बोसॉन, ओके, दे ऑक्यूपाइड द लोएस्ट अवेलेबल ग्राउंड स्टेट इन सुपर कंडक्टर, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत सिंपल डिफरेंस में बात करूँ, तो यहाँ अगर सुपर कंडक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ कूपर पेयर होते हैं, ठीक है, एंड दैट कूपर पेयर फॉर्म बाय द अपोजिट स्पिन, ओके। ये अपोजिट स्पिन होते हैं, तो अपोजिट में टोटल जो स्पिन अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, S0 होता है, ठीक है। तो S0 किसके लिए होता है? बोसोन के लिए होता है। तो कूपर पेयर क्या होते हैं? बोसोन होते हैं, और बोसोन में लोएस्ट अवेलेबल ग्राउंड स्टेट में ही रह सकते हैं, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगता है। अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है तब आपके पास सेकेंड एनर्जी लेवल में वो इस तरह के एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा जहां पर अपोजिट स्पिन हो पाए, ठीक है, सेम स्टेट में नहीं रह सकते, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर अगर आप बोसोन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दे कैन अवेलेबल इन द ग्राउंड स्टेट, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में दे आर इन कूपर पेयर, okay, they are Cooper pair and they are boson, they follow the Bose-Einstein statistics, or they can live in the ground state, okay. But whatever after all going to the transition temperature Tc, they will go to the fermion, okay, they will behave like a fermion, okay. So यहाँ पे उस तरह का बिहेव करता है। अब अगर फोर्थ पॉइंट दे, द फर्मियन इन द कंडक्शन बैंड बिहेव लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल एंड कंट्रीब्यूट द कंडक्टिविटी, और जो भी कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूट होती है, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वहाँ नॉर्मली इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्यूपाइड बोसोनिक ग्राउंड स्टेट, ओके। एंड यहाँ पे जो भी होता है, लेकिन ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हम बात करें तो ये फर्मियोनिक स्टेट होती है। तो यहाँ जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बीसीएस स्टेट और बीसीएस ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, और सेकंड जो आपका फर्मी लेवल होता है। तो इन दोनों के जो डिफरेंस है वही एनर्जी गैप कहलाता है। आई थिंक ये वाले पॉइंट मुझे लगता है आप सभी को समझ में आए भी होंगे, और ये काफी लोगों ने जो है पहली बार इन दोनों का डिफरेंस देखा भी होगा,
Okay. Now we are going to the next question. The plot of specific heat versus temperature across the superconductor's transition temperature is most appropriately represented by. Hello. Yes. So now this is the question. Okay. This question came in the gate. Okay. And in this question, what they are asking, the plot of specific heat versus temperature across a superconducting transition temperature Tc is most appropriately represented. सभी अपना आंसर लिखिएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन. मतलब यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो बताइए आप. आई थिंक ये तो हम पहले ही देख चुके हैं. जब थर्मल कंडक्टिविटी हमने देखा था तब हमने ये ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं. ठीक है. तो लॉट्स ऑफ पीपल आर गिविंग द आंसर and lots of students giving the answer. It is right answer they are giving. Okay. The answer is this one. Okay. ये इसका रीजन भी हम देख चुके हैं. ठीक है. तो आई थिंक मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. ओके. Specific heat for a superconductor is increases as compared to normal state, normal metal. Okay. And this is given by this particular graph. Okay. Now we are coming to the next question. Okay. This is the answer. Okay. So now the next question. Which one of the following represent the electron occupancy for a superconductor in normal and superconductor state? Okay. यहाँ आपको एक तरह से फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है. ठीक है. तो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? Fe और E के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है. तो इसमें नॉर्मली पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है वो आपको फर्मी एनर्जी लेवल बताता है. ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट में फर्स्ट वाला ये ग्राफ है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये है. ये क्या सही है? क्या सभी बताइए अपना आंसर. ये सही होगा? नहीं है. ठीक है. अगला वाला देखते हैं ऑप्शंस. नॉर्मल मेटल के लिए ये है और सुपर कंडक्टर के लिए ये. क्या ये सही है? ये भी गलत है. ठीक है. अब देखिए नॉर्मल स्टेट के लिए अगर नॉर्मल मेटल का आपको पता है किस तरह से आता है, ये इस तरह से होता है. 0 केल्विन पे ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है. ठीक है. 0 केल्विन पर बिल्कुल शार्प होता है. बट अगर आप कुछ टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया देन व्हाट हैपन? दिस इज बिहेविंग लाइक दैट. ओके. सो यहाँ अगर हम बात करें नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इन दोनों का हम देख रहे हैं. तो नॉर्मल स्टेट में ये बता रहा है इस तरह का ग्राफ, तो ये बिल्कुल सही है. नॉर्मल स्टेट में तो सही है, यहाँ हम देखा ही हमने ये वाला. ठीक है. बट सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा. ठीक है. अगला वाला नॉर्मल स्टेट में ये और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये बता रहा है. तो ये सही है क्या? देखिए नॉर्मल स्टेट में अब आपको ये तो पता है कि नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट इनमें टेम्परेचर जो है वो किसके लिए ज्यादा लोअर होता है? टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के लिए लोअर होता है, आपको सभी को पता है. मतलब सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट ही आपको देखना है तो वो लोअर टेम्परेचर पे ही देखना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो स्टेप वाइज किसके लिए होना चाहिए? सुपर कंडक्टर के लिए. ओके. नॉर्मल स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो इट इज गो बियॉन्ड पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ये कुछ ना कुछ हायर टेम्परेचर पर ही है. ठीक है. तो इस वजह से अगर हम बात करें इस ऑप्शन की तो यहाँ फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम बात करें तो नॉर्मल मेटल या नॉर्मल मेटल के लिए आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिल्कुल सही है. ठीक है. इस तरह का स्टेप नहीं होगा क्योंकि अगर कुछ टेम्परेचर होगा तो वहां पर हमने देखा था कि वो जो स्टेट है वो इस तरह की होती है. ठीक है. मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर की प्रेजेंस में हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इस तरह से बिहेव करते हैं. बट वहीं अगर हम बात करें सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज achieved at very low temperature and the Fermi distribution function is looks like a stepwise. Okay. So this is the answer of this question. Okay.
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने प्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है फॉर अ सुपर कंडक्टर। ओके, सो द आंसर इज डी। अनदर वन इज दैट आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। amongst electrical resistivity rho, thermal conductivity K, specific heat C, and Young modulus Y, and magnetic susceptibility chi, which quantity show a sharp change at the superconducting transition temperature? देखिए चार ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पे शार्प चेंज जो है वो किस में होता है ये पूछा गया है। ये चार ऑप्शंस है, इनमें से किसके लिए जो है वो शार्प चेंज होता है सुपर कंडक्टिंग टू नॉर्मल स्टेट में जब हम जाते हैं, या नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाते हैं, तो शार्प चेंज किस में दिखाई देता है? तो आपको अभी हमने बताया ही है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये वाला इसका आंसर जो है वो सेकेंड होगा। देखिए कैसे, रजिस्टिविटी का तो हमें पता ही है, रजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा होता है, जस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो जो है वो रेजिस्टेंस सडनली डाउन होता है। तो रजिस्टिविटी जो है वो सुपर कंडक्टर के लिए ड्रास्टिक चेंज होती है। वहीं स्पेसिफिक हीट का हमने देख ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही कि वहाँ क्या होता है, ये इस तरह से पहले तो इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में शार्प डाउन होकर फिर ये नॉर्मल मेटल के लिए होती है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमने देखा है बिल्कुल माइजनर इफेक्ट को फॉलो करती है। तो माइजनर इफेक्ट में क्या होता है, ये बिल्कुल शार्प बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर आंसर इसका कौन सा होगा, सेकेंड आंसर होगा। थर्मल कंडक्टिविटी और यंग मॉडुलस जो है वो कंटिन्यूस बिहेवियर शो करते हैं, ये चीज है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ a type 1 superconductor is, ओके एनीबॉडी नो? अच्छा, ये 40 मिनट हो रहे हैं, अगर कनेक्शन जाता है तो वापस से इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, व्हाट इज द आंसर? The relative magnetic permeability of type 1 superconductor is, somebody is given, Surbhi Agrawal given the answer B, but you can see Surbhi, this is magnetic permeability is given, not susceptibility. Okay, so many time what we are going to do, if we have if we see a very simple question, then we are going to tick very immediately. Okay, then what happen, we will lose our marks. Okay, so we can see here the relative magnetic permeability of a type 1 superconductor is 0. How? Because you know that chi is equal to mu r minus 1. Okay, you can see from here chi is equal to mu r minus 1 or mu r is equal to 1 plus chi, and for a diamagnetic material chi is equivalent to minus 1. Okay, then what happened, this chi is equal to minus 1, then this minus 1 plus 1 is equal to 0, then relative permeability is goes to the 0. So this is the answer of this question. Okay, I think everybody know about this answer. We may go for a next question. Okay, next question is there. Somebody is given the answer 1/4 pi. देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि आप ढंग से देखिए, रिलेटिव परमिबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। तो परमिबिलिटी पूछा है तो उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या करना होगा क्वेश्चन को। some students are coming right now. Another question you can see at your screen. Okay, this is the question in which a conventional type 1 superconductor has a critical temperature of 4.7 Kelvin. This is the TC. Okay, what is given? TC is given here. TC is given. Okay, this is equivalent to 4.7 Kelvin at 0 magnetic field. Okay, and critical magnetic field is 0.3 Tesla
एट 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन पर जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है। Okay, so here we can see 0 केल्विन पर जो है वो क्या दे रखा है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मतलब SC0 आपको दिया हुआ है। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको निकालना है 2 केल्विन पर। ठीक है, ये आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा जहां तक है। फॉर्मूला क्या है, SCT इज इक्वल टू SC0 1 माइनस टी बाई TC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, वी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, SCT इज इक्वल टू SC0 1 माइनस टी बाई TC का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है हमें, व्हाट इज गिवन, द क्रिटिकल टेम्परेचर is given TC is equal to 4.7 Kelvin. Okay, zero magnetic field. Okay, and what is given, critical magnetic field 0.3 is given at for a 0 Kelvin. What we do is at temperature 2 Kelvin we need to find SCT. Then what we will do, SC0 is given, we will put this SC0 here. Okay, and temperature at 2 Kelvin we need to find SCT. Okay, and at TC 4.7 Kelvin given. Okay, so we will put this all value at the at this formula. What is happening of after all that, 0.3 is written here. Okay, just 2 Kelvin we put here, and 4.7 we put here, and finally we calculate the SCT, and SCT find that we find the SCT 0.246 ampere per square. I think this many students, I don't have think that they have a problem in these questions. Okay, we may move I think for the next question. 0.246 है और इसमें 3 डेसिमल तक आपको बताना आंसर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गेट का क्वेश्चन है, इसमें 3 डेसिमल तक पूछा गया। This is the last question of this class. A flux quantum is approximate to 2 into 10 to the power minus 7 Gauss centimeters. What is given, flux quantum is approximate this value, means this is the flux quantum pi. Okay, a type 2 superconductor is placed in a small magnetic field, okay, which is then slowly increased till the magnetic field start penetrating the superconductor, superconducting to the superconductors, and the strength of the magnetic field at this point is 2 upon pi 10 to the power 5 Gauss. Okay, the penetration depth of this superconductor is, okay, very interesting question. What is happening in this question, a type 2 superconductor taken, okay, and then what happened, a superconductor is placed in a small magnetic field. Okay, type 2 superconductor, we know about the type 2 superconductor, it is behave like that. This is type 2 superconductor in which this is SC1 and this is SC2. Okay, and type 2 superconductor sustained below SC1 and SC2. Okay, so what is happening in this question, what we will do in that question, they are asking that we kept this superconductor in a magnetic field, small magnetic field, and then what happened, the when is then slowly increased till the magnetic field start penetrating the superconductor. देखिए टाइप 1 सुपरकंडक्टर में क्या होता है आपको पता है कि जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो पूरी तरह से एक्सक्लूड करती है, बट जहां से आपने SC1 फील्ड जैसे ही आपने लगाते हो तो क्या होता है कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सुपरकंडक्टर को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करती है, ओके, बिकॉज दे हैव a larger magnetic field they can sustain. Okay, type 2 superconductor. तो ये किस पर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड दैट स्टार्ट एट SC1, ओके, और SC2 तक ये जो है सस्टेन करता है। SC2 के बाद में अगर आप वो लगाएंगे then it become a normal conductors. So we need to find strength of field at this point
the strength of the file at this point is this given. तो यह जो स्ट्रेंथ है जहां से आपको पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो SC1 कहलाता है, ठीक है. तो दिस पॉइंट इज SC1. सो we need to find SC1 is given and we need to find penetration depth. So we can see the answer of this question is that phi 0 is given and as the flux quantization is given and SC1 is also given. So we know that the SC1, this is the first critical point of critical magnetic field. Okay, the formula is first critical point magnetic field is phi 0 upon pi lambda square. Okay, this lambda is known as the penetration depth. So we will move this penetration depth to here because we want to know about we want to find the lambda. Okay, then lambda square is comes here and then SC1 is comes there and then we put all the value in this formula. Okay, then we can find that this lambda is given by 100. We find the lambda is 100 angstrom. Okay, so this is the penetration depth. Okay, where what happened initially at this particular point. Okay, this particular point at SC1. Okay, this penetration depth is 100 angstrom. Okay, and then we need to find another thing in this question. The applied magnetic field is further increased till superconductor is completely destroyed. Okay, and the strength of the field is now 8 into 10 8 by pi 10 to power 5. Okay, and corresponding length of the superconductor correlation length of the superconductor is B. So what happened when we are going to see the superconductors, then what happened, here is the SC1. Okay, and when it is destroyed then it is known as a SC2. Okay, this particular point is SC2 and this is SC1. Okay, then it is asking that the applied magnetic field is further increased, so we increase the magnetic field. Here is magnetic field. Okay, so and it is M, so we applied more field. Okay, then what happens, superconductor is completely destroyed and we know that where is superconductor state is completely destroyed at SC2, above SC2. Okay, the strength of the magnetic field is given and at that particular point the magnetic field strength is given. Okay, and they are asking about the correlation length of the superconductor. So given critical second magnetic field and the relation between second critical magnetic field and correlation length is SC2 is equal to phi 0 upon pi chi square. Okay, so we have to find chi square, so we will put it here and then we know about the pi 0 and SC2, we will put it here and then we will find the correlation length. Okay, so this is the correlation length and as well as we find the penetration depth. This one is the penetration depth. So we can see a general formula, we can see for SC1 and SC2, that is SC1 and that is SC2. Okay, and general formula is given by this particular formulas. Okay, where phi 0 is flux quanta and another is which is equal to h upon 2 pi. Okay, and lambda is penetration depth and this guy is equal to correlation length. Okay, so this is the questions that came in the various exams during a past 5 to 10 years. Okay, and then in this particular class we already shown a formula used in the superconductor. So this is much beneficial for you because you want to get a formula sheet also. So we already given to you that particular formula sheet and accordingly we already solved the many questions from the various examinations. Okay, so this is the finally this class is completed here and we can see for a specific we can see the superconducting state. For a superconductor state, this specificity is given by this particular formula. Okay, this is exponentially enhancing. Okay, the specificity is given by this particular formula. So we can see whatever we already seen here, the Eg is also included in that. So band gap energies comes from the specificity formula. Okay, so that is defined by this particular thing. Okay, and this is for normal. Okay, so right now we are going to conclude
my talk. Okay, so if anybody have a doubt, please ask the questions. How was the yes PDF जो है आपको जो YouTube पर जो लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, उसके बाद उसी में जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ एक YouTube लेक्चर जो है ये यहाँ पे ये जो लेक्चर्स है ये दोनों आपको मिल जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स है उसका भी सीट, साथ में फॉर्मूला सीट भी। तो अब आने वाली जो क्लासेस है उन सभी में आपको फॉर्मूला सीट भी मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन गेट योर फॉर्मूला सीट आल्सो, so you can easily revise the formulas and then after you can go to the question answer. Okay, if anybody have a doubt then you can ask. And how was the lecture? Is there any problem? They can ask to us. Hello, Yes. this is Jim sir. Good evening sir. कैसे हाँ, हैं? good evening sir. Fine. How are you? सर आप अच्छा था सर, आपने सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर अच्छे से सब बच्चों को बता दिया। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों के, अगर ये सही से पढ़ लेंगे। जी सर। बढ़िया रहा सर आपका लेक्चर। अच्छा इसमें ऑलरेडी सर इनको जो यूजीपीजी लेक्चर सीरीज था उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया था हमने, ठीक है। हाँ तो मैं देखा हूँ सर। हाँ, तो आई थिंक वहां से काफी चीजें, और इनको मैंने कल यूट्यूब लेक्चर भी इसीलिए मैंने प्रोवाइड करवा दिया था कि इससे ये इजीली जो है वो रिव्यू करके आ जाए। एक बार क्या है, जब रिव्यू कर लेते हैं आसानी से तब जो है वो काफी इजी हो जाता है। वो इसी वजह से फिर मैंने जो है वो फॉर्मूला शीट भी इनका बनाया कि आफ्टर ऑल दे विल सी सम क्वेश्चंस and they will see some formulas, accordingly that they will see it on the question answer. जी हाँ, तो मैं यही बच्चों से कहूंगा कि आप लोगों को हम लोग तीनों लोग टाइम दे रहे हैं तो अपना पूरा lots of it is not a time, it is lots of time covering this particular activity because मैं बैठा हूँ लगभग मॉर्निंग में 10 बजे से बैठा हूँ, ठीक है। I covered all things questions on you can see these all questions are wrote by the sketch pens, okay, because it will looks like good if they will see this, okay, as well as ये ना अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं तो सब चीजों को कवर भी कर रहे हैं। हाँ, तो यही अब हम यही बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी अपने और बाकी लोगों को भी इससे जोड़ें जिनसे उन लोगों को बेनिफिट मिल पाए। तो हम लोग सर्विस कर रहे हैं, कोई किसी से पे तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, तो वही कोशिश इन बच्चों से कही है कि ये सब लोग जोड़े थोड़े। नहीं, सबसे बड़ी चीज सर ये है कि after all we have a 35.40 student, okay, in this lecture, okay, and where is remaining almostly we have 400 to 500 student in two groups, okay, and that particular group is dedicated to particularly NET and GATE examination, okay. So where is the remaining people? If they don't want to if they are not interested in the examination and in the particular activity, they should leave, because we don't want a very big people, means we don't need a crowd, we only need a very good student that can learn the things as well as they can revise the things, okay. ये चीजें होना चाहिए कि हम लोगों को डेडिकेटेड लोग चाहिए जो अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए आप लगातार जो है आपकी क्लासेस जो है वो एक भी दिन जो है वो मुझे लग नहीं रहा है ड्रॉप हो रही है। हो भी सकता है एक दिन हो रही, तो वो सभी लोगों को थोड़ा सर हम फॉलो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है। मतलब हम अगर इतना फॉलो कर रहे हैं तो दे शुड, मतलब उनको सीरियस होना चाहिए। इफ दे आर नॉट सीरियस देन हम इन लोगों के लिए और भी बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्योंकि इनका एग्जाम आने वाला है तो हम और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकें इस पूरे टाइम में, जितना ज्यादा सिलेबस इससे कवर हो पाएगा। अब जैसे क्या होता है, बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने जाते हैं। देखिए आप सोचिएगा, बच्चे बाहर जैसे पढ़ने जाते हैं, दे आर गिविंग ऑलमोस्टली 70-80,000 आई थिंक, ये मुझे लगता कम होगा, है ना, और भी इससे ज्यादा। इसके अलावा रहने जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं सर, हम लोगों ने किया, हम तो दिल्ली रहते थे, इतना हम लोगों के डेली एक्सपेंसेस कितने होते थे। और सबसे बड़ी चीज ये है सर, मैं मतलब एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, हम लोगों को ये चीजें पता ही नहीं थी। मतलब हम जब एमएससी में थे तब हमें ज्यादा चीजें एक्सपोजर पता ही नहीं। हम
इंदौर में जैसे रहे, देखिए आप बताइए, इंदौर में एक भी कोचिंग नहीं थी सर, जी जी ठीक है ना, और उस समय हम जी आसपास दौड़ते थे कि भाई हमें कोई एक कोचिंग मिल जाए, ठीक है ना, तब भी हमें कोई कोचिंग नहीं मिली। अब आप ये सोच सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि वेल नोन टीचर्स जो एमपीपीएससी से सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको सोचने वाली बात ये है सर कि बाकी जगह जो टीचर पढ़ा रहे हैं, दे स्टिल ओनली जी नेट जी एंड गेट एंड दे स्ट्रगलिंग फॉर जी जॉब ऑल्सो, ठीक है, बट जी we are after all coming in the job and we are going to do this thing, that is quite different because जी nobody want to do things after all that, okay, तो ये एक बहुत तो बड़ी ये चीज है। है। हाँ, अब इन लोगों को अच्छा मिल रहा है, देखते हैं कि अब कितने लोग हमसे जुड़ पाते हैं। हाँ वही है, और अब आज हो सकता है तो आज मैं, हेलो सर। हाँ जी हाँ, कौन, कोई बोल रहे हैं, बोलिए। सर टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर के बारे में थोड़ा आइडिया हाँ बताइए। जी, हाँ कुलदीप यादव जी बोल रहे हैं। योर क्वेश्चंस इज नॉट quite audible. Please ask again. Either you can go to the chat box and you can ask the question. Whatever the question, we can try to give you answer. Please. I think who asked the question?